Thank you, sir. Sir, Honorable Minister, in 2019, when he was the earlier Minister in Health and Family Affairs, has laid a foundation stone in Madurai AIIMS. And because of many issues and others, the delay continues. It's been now 7 years, and we hope that this year and the later year, it will be able to be opened. But it is working in Ramanathapuram, as we know. Think that in the reply, sir, you had mentioned that among the sanctions strength of 183, vacancies are 109. That is 70% of the faculties are vacant, and non-faculty is so bad that 1,011 positions, 972 are vacant. That is 90% is vacant. In the meantime, on March 11th, sir, there is a advertisement called, and there is a recruitment drive happening for 7 positions. In that also there is EWC category, EWS category with 10%. One seat has been allotted, but the SC community with 15% has no allocation of the seats itself, sir. I wrote a letter regarding that to yourself, sir, yesterday only. And I hope that the roster which is followed in Madurai AIIMS should also be followed. And when is the recruitment drive will also be filled, as the AIIMS is going to be opened in the near future. Thank you, Honorable Speaker. Ma'am, the nation is reeling under an unprecedented crisis. The acute shortage of LPG gas cylinders, petrol and diesel have brought the country to a halt. Hospitals are struggling to provide essential services, college canteens are shut, the hotels are closing down, the common man is struggling to cook a simple meal and fuel their vehicles. The central government's mismanagement and inaction to blame this crisis. The shortage has led to panic, with people queuing up for long hours to get a cylinder or a liter of petrol. The prices are soaring and the people are suffering. I demand the government to take immediate action to address this crisis, roll back the price hike, ensure uninterrupted supply. The nation is crying out of relief, and it's the government's duty to listen. I urge the government to act now and provide relief to the people. Thank you, ma'am. धन्यवाद सर. सर, माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में ये बताया कि लगभग 1,068 acres of land is been encroached, sir. सर, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट ऑन रेलवेज 2022-23 में 782 acres of railway land was under encroachment, sir. आज भी कई जगह पे encroachment हो रहा है, खास करके जैसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आसपास जो वारसीगुड़ा, चिलकलगुड़ा और मलकाजगिरी के जो एरिया है, वहाँ पे जो प्रेशियस लैंड्स है, उस लैंड के अंदर सॉफ्ट एंक्रोचमेंट और हार्ड एंक्रोचमेंट भी हो रहा है. मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रेशियस लैंड्स के लिए किस तरह का आप लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? थैंक यू. सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान अनिल कुमार यादव मंडाडी जी. सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकार के बारे में भी बताया है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार ने भी जैसे लैंड एंक्रोचमेंट के लिए एक एक्ट लेकर है जिसका नाम हाइड्रा है. इस हाइड्रा के तहत चलते हुए कई लैंड एंक्रोचमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के लीडरशिप में कई जैसे एंक्रोचमेंट हुए थे पिछले 10 सालों में, उस लैंडों को प्रोटेक्ट करने का काम हाइड्रा कर रहा है. जिसके चलते हुए जैसे कि TNGO, जिसके 16 acres लैंड एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है. कोंडापुर में 11 acres का लैंड एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है. बाजपल्ली और निजामपेट में लगभग 21 acres एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको भी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट किया है. केवल यही नहीं, काफी वाटर बॉडीज को भी, लेक्स को भी जो भी एंक्रोचमेंट हुआ है, जैसे बतकम्मा कुंटा अंबरपेट में हुआ है, काफी हाइड्रा ने प्रोटेक्ट करने का काम किया है. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का कोई आप लोग प्रोटेक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन करना चाह रहे हैं? धन्यवाद. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बाडरा हरियाणा में कैंसर रिसर्च, ऑल इंडिया कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था यूपीए गवर्नमेंट में. इसमें 8-10 टावर और बनने थे. एम्स का जो पार्ट था, तो वो कब पूरा होगा? और एक मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि 6-7-8 पार्ट बन जाएंगे, एम्स में जो लोड ज़्यादा है उसका लाभ भी होगा, और वहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 400-450 एकड़ के करीब है. तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कैंसर का बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है,
उसमें प्रतिदिन जो ओपीडी हैं वो बहुत कम पड़ती है और जिन लोगों को ऑपरेशन होने हैं स्पीकर सर समय बहुत लंबा लग जाता है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स का ऑपरेशन का उपाय करे जाए और हमारे जो बाकी जो टावर बनने हैं वो कब तक बन जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डेफिसिट में है। उसकी वजह से वहाँ पे रहने के लिए डॉक्टर्स बहुत बार ना बोलते हैं। वहाँ पे क्वार्टर्स अच्छे नहीं है या बाकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है। तो इसमें डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? माननीय मंत्री थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक जो खाड़ी के देश है उससे $11 बिलियन का फर्टिलाइजर भारत ने आयात किया था। जो 49% नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और यूएई से आते हैं। 4 हफ्ते से जो हॉर्मूज की स्ट्रेट है वो बंद पड़ी है और उसके कोई खुलने के आसार भी नहीं लग रहे जिस तरह की युद्ध की परिस्थिति है। 40 जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जो सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है जो कतर फर्टिलाइजर कंपनी चलाती है वो फर्टिलाइजर प्लांट कतर ने बंद कर दिया है और हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खरीफ का जो सीजन है बुआई का वो तो निकल जाएगा, पर आने वाला जो रबी का सीजन है और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों के ऊपर, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है? What diversification are we attempting in order to ensure that the next sowing season is not impacted?